Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Shalom. शालोम। I greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. मैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। Once again, I'm very much glad to come in front of you all with this program. और एक बार से फिर मैं बहुत ही खुश हूँ आप सबके सामने आकर इस कार्यक्रम के साथ। Learn Hebrew. लर्न हिब्रू। I give all glory and honor मैं सारी आदर और सारी महिमा to our Almighty God. हमारे महान परमेश्वर को देता हूँ। It is just because of His faithfulness and of His loving kindness और ये केवल उसकी दया के कारण और उसकी कृपा के कारण है that I am able to come in front of you all कि मैं आप सबके सामने आ सका हूँ in order to teach the biblical language. ताकि आपको बाइबल की भाषा सिखा सकूं। And also I give thanks for all the viewers और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ for your love आपके प्रेम के लिए, in watching this program इस कार्यक्रम को देखने के लिए and also of your zeal in learning the Hebrew language. और आपके उत्साह के लिए जो आप इस कार्यक्रम को देखने के प्रति दिखाते हैं। Even I thank you for your support of prayers for this program. और धन्यवाद करता हूँ जैसे आप इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना को करते हैं। And even I give thanks for all the people, those who call me and those who give me the feedback about this program. और धन्यवाद करता हूँ उन सभी दर्शकों का जो मुझे कॉल करते हैं और इस कार्यक्रम के प्रति अपने फीडबैक को देते हैं। May the Lord continuously bless you all as you watch this program and learn the Hebrew language. और परमेश्वर लगातार आपको आशीष करता रहे जैसे कि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस भाषा को सीखते हैं। It's really a blessing. Even the people, those who are missed of the beginning episodes are watching in YouTube and learning the Hebrew language. और ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी आशीष है जैसे कि आप इस कार्यक्रम को YouTube के द्वारा भी देखते हैं जिन्होंने शुरुआती कार्यक्रमों को नहीं देखा था। So may the Lord continuously bless you all as we learn this language. और परमेश्वर लगातार आपको आशीष करते रहे जैसे कि हम इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस भाषा को सीखते हैं। Well, we have been learning about और जैसे कि आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं the biblical concept about sin. कि पाप के लिए बाइबल का क्या विचार है। The biblical concept about sin. और पाप के लिए बाइबल की जो क्या विचारधारा है। We have been learning about what are the Hebrew words that are used for the word sin in the Bible. और हम देखते हैं कि बाइबल में जो पाप के लिए इब्रानी भाषा में कौन से शब्दों का उपयोग किया जाता है। As I said that और जैसे कि मैंने कहा था in the Bible there are 20 different words that are used for sin in both testaments. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाइबल में लगभग 20 शब्द हैं नए और पुराने नियम में जिनका उपयोग पाप के लिए किया जाता है। As particularly that there are 8 different words that are used in the Hebrew language. और खास तौर पे 8 इब्रानी शब्द है जो कि पाप के लिए उपयोग किए जाते हैं। It is not just the word that sin that we say, but when we go into the language and we see actually what is sin. और इसका केवल यही अर्थ नहीं जैसे कि हम साधारण शब्दों में कहते हैं पाप, लेकिन जब हम इसे गहराई में देखते हैं तो हम इसके विचारों को पाते हैं। And by basing on that, in the last episode we have seen the first word. और जो इसी के आधार पे हमने पिछले कार्यक्रम में पहले जो शब्द को देखा था, The first word that we have learned was, और जो पहला शब्द हमने सीखा था, it is the word that we have seen is the kata. और वो शब्द था कथा। So it is the word that we have learned is the kata. और जो हमने पिछले कार्यक्रम में सीखा था वो शब्द था कथा। How it is? और कैसे है ये? It is the heth, और ये है हेत, and then kamex, और फिर कामिक्स, and then teth, और फिर टेर, and then kamex he. कामिक्स है, So where we have seen it as the kata, और ये है कथा, kata, कथा, which means और जिसका अर्थ है that we have seen it's missing the mark, और इसका अर्थ है कि अपने जो निशाने से चूक जाना or it is to miss the aim what is set before you. और अपने निशाने से चूक जाना जो कि आपके सामने रखा गया है। So sin is all about, और जो पाप कुल मिला के it is of missing the mark. और इसका अर्थ है कि अपने जो निशाने से चूक जाना। That God had kept certain things in front of us. और परमेश्वर ने कुछ बातों को हमारे सामने रखा। God set certain marks in front of us. और परमेश्वर ने कुछ चिन्हों को हमारे सामने रखा। And it is that we need to aim it and we have to do it, and if you miss, and that is what the sin
that the Bible says. और हमें उनके ऊपर विचार करना है और उन्हें जो करना है, यदि हम उन्हें नहीं करते तो वो पाप है। And now let us see about the second word और आज हम जो दूसरे शब्द को देखेंगे which is used for sin in the Bible. और जो कि पाप के लिए बाइबल में उपयोग किया गया है। The second word और जो दूसरा शब्द है that we see for the word sin in the Bible, और जो हम देखते हैं पाप के लिए बाइबल में, it is the word और वो शब्द है it is Ra. और वो है रा। Ra. रा। How it is? और कैसे है ये? It is to say as और इस तरह से हम कहते हैं Resh, रेश, Kamex He. कामिक्स है। And now what is this? और ये क्या है? It is Ayin, which is silent. और आइन जो कि साइलेंट है। And then we see about Kamex He. और फिर देखते हैं कामिक्स है। So Kamex He, कामिक्स है which is Ra. जो कि है रा। Ra, रा। it is Resh, और ये है रेश, Kamex, कामिक्स, Ayin, आइन, Kamex He. कामिक्स है। And I believe that और मैं आशा करता हूँ कि you all are aware of the ending. और आप सब जागरूक होंगे जो शब्द के अंत के बारे में। So you know this is the ending of और ये यहाँ पे जो इसका अंत है, which gender it is, और कौन सा ये लिंग है, which gender कौन सा लिंग है, and which number. और कौन सा नंबर है। Can you able to say और क्या आप कह सकते हैं which gender और कौन सा लिंग है ये, and which person? और कौन सा ये पर्सन है, What is that? और क्या है ये? You are right. आप बिल्कुल सही हैं। This is feminine gender. और यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है। And which number? और कौन सा नंबर है? This is singular. और ये यहाँ पे जो एक वचन है, So it is the Ra. और ये है रा। Basically, मुख्य रूप में this word, और ये जो शब्द है, it is a basic common word that we use for sin in the Bible is Ra. और बाइबल में ये आम उपयोग किया जाने वाला शब्द है जो कि हम पाप के लिए उपयोग करते हैं, ये है रा। So which is to say Resh और ये रेश, and then Kamex और फिर कामिक्स, and then Ayin. आइन। So this is the basic. और ये जो मुख्य शब्द है, So it is to say as Ra. और हम इसे कहते हैं रा। So Ra. रा। So where you know we see it is as और इस तरह से है ये, evil. It is evil और जिसका अर्थ है कि बुराई or bad. और या फिर बुरा। So it is evil or bad. और इसका अर्थ है कि बुराई या बुरा। So Ra, रॉ। it is the word which is you need to understand the very first thing. और आपको जो पहली बात समझनी है, It is और ये है an adjective word. एडजेक्टिव वर्ड। It is an adjective word. और ये एडजेक्टिव वर्ड है। So Ra रा। is an adjective word. और ये जो एडजेक्टिव वर्ड है, Why it is an adjective? और क्यों ये है? Because evil क्योंकि यहाँ पे जो बुराई है or bad, और जो बुरा है, it is used और इसका उपयोग किया जाता है as an adjective. और एडजेक्टिव रूप So that's में। what we may say evil man और इस तरह हम कहते हैं कि बुरा व्यक्ति or evil thing, और बुरी बात, or we may say bad thing, और या फिर बुरी चीज, or bad work. और जो बुरा काम, So it is used और इसका उपयोग किया जाता है in an adjective way. और एडजेक्टिव वर्ड में। So and the second thing that you have to keep in mind, और जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, even though it is an adjective, और यहाँ पे चाहे ये एडजेक्टिव है, but it got off और यहाँ पे ये पाता है as a feminine ending. और इसका जो स्त्रीलिंग अंत है। Are you getting? और क्या आप समझ पा रहे हैं? Are you with me? और क्या आप मेरे साथ हैं? The Hebrew word for bad or evil, और इब्रानी भाषा में बुराई या बुरे के लिए जो शब्द है, it is as Ra. और वो है रा। Ra, रा, evil बुराई or bad. और या बुरा, And it is used as और उसका उपयोग किया जाता है an adjective usage. और एडजेक्टिव में। And the second, it is a feminine word. और दूसरी बात ये है कि ये स्त्रीलिंग है। And when we look in the Bible, और जब हम बाइबल में देखते हैं, this word in the Old Testament और ये जो शब्द है पुराने नियम में, is used more than और उसका जो उपयोग किया गया है more than 600 times. और 600 बार से ज्यादा बार। This word Ra और ये जो शब्द है रा, is used in the Old Testament और ये
जो पुराने नियम में उपयोग किया गया है more than 600 times. 600 समय से भी ज्यादा। Basically, when we see about this word meaning, और जब हम इसके जो अर्थ को देखते हैं, the word ra meaning, as we know, it is as evil or और bad, जैसे कि हम जानते हैं कि रा का अर्थ है बुराई या बुरा, but sin, लेकिन जो पाप it is sin और पाप as being broken. लेकिन जो पाप है वो तोड़ता है। Sin means what? और जो पाप का अर्थ क्या है? It is being broken. और तोड़ना, It is being broken. और तोड़ देना। Now, when a thing is broken, और जब एक चीज टूट जाती है, there it is no useful. और उसका जो कोई भी उपयोग नहीं कर सकते So हम। when we come into the concept of sin, और जब हम पाप की विचारधारा को देखते हैं, it is broken और इसका अर्थ है कि टूटी हुई, into pieces. और जो टुकड़ों में टूट जाना, It is broken into pieces. और जो टुकड़ों में टूट जाना। So now when we say about the word ra, और जब हम कहते हैं शब्द रा, it is evil or sin, और इसका अर्थ है कि बुराई या बुरा, and the exact meaning that we get, और जो उसका सही अर्थ जो हम पाते हैं, it is sin as being broken. और पाप का अर्थ है कि टूट जाना। So it is being broken, और जो टूट जाना, broken into pieces. और जो टुकड़ों में टूट जाना। For an example, और एक उदाहरण के लिए, now you take a chair, और आप एक कुर्सी को लें, and in that, और उसमें if one leg is broken, और यदि उसका जो एक टांग टूट चुका है, among the 4 legs, and if the one leg is broken, और जो 4 टांगों में से यदि उसका एक टांग टूट चुका है, are you able to sit? और क्या आप उस पे बैठ सकते हैं? Are you able to take support of that chair when you'd like to sit? और क्या आप उसमें जो सही रीति से एक सहारे के रूप में बैठ सकते हैं? No, नहीं, because क्योंकि the leg is broken. जो कुर्सी की एक टांग है वो टूट चुकी And है। you know that और आप जानते हैं, the chair cannot consist of your strength. और आप जानते हैं कि जो कुर्सी है वो आपके सहारे को नहीं सह सकती। And that is what we see, it is became as a bad chair, और इसीलिए हम उसे कहते हैं कि ये बुरी कुर्सी है, or it is a broken chair, और या फिर ये टूटी हुई चेयर and we won't कुर्सी है। allow anybody to sit up on that chair. और हम किसी को भी अनुमति नहीं देते कि वो उसके ऊपर बैठे। Why? Because it is a broken. क्यों? क्योंकि वो टूटी हुई है। So in the same way, और उसी प्रकार से when we say about ra, और जब हम कहते हैं रा, it is breaking the commandments of God. और उसका अर्थ है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देना। It is God have set certain rules and regulations in our life, और परमेश्वर ने कुछ नियमों को हमारे जीवन में रखा, and if you broke them, और यदि आप उसे तोड़ते हैं, and it is as sin. और वो एक पाप है। Another way to say और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं that if your food is spoiled, और यदि आपका भोजन जो खराब हो जाए, or if your food is become bad, you won't eat it. और यदि वो जो खराब हो जाए तो आप उसे नहीं खाते, Even it is your favorite dish, और चाहे हो सकता है कि वो आपकी मनपसंद हो, even you have labored a lot to make that food, और चाहे आपने उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत की हो, but लेकिन if it is spoiled और यदि वो खराब हो गया and you won't eat, और आप उसे नहीं खाते, because you know that the consequence after eating, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप उसको खाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, and how it will affect your physical और condition, कैसे वो आपके शरीर के ऊपर प्रभाव how it डालेगा, affects for your health matter. और कैसे वो आपकी सेहत के ऊपर प्रभाव डालेगा, So you won't eat it और आप उसे नहीं खाते, because you know the consequence. क्योंकि आप जानते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। So when we talk about this word ra, और जब हम यहाँ पे बात करते हैं इस शब्द रा की, this word it is says as evil or bad, और ये शब्द हमें यहाँ पे बताता है बुराई और बुरे के बारे में, but as sin being broken,
और जो पाप का अर्थ है कि टूटा हुआ, or it is broken into pieces. और उसका अर्थ है कि जो टुकड़ों में टूटा हुआ। So that is what we see about this word. और इन सारी बातों को हम देखते हैं इस शब्द रा के बारे में। Even we see that sin as being blemish. और जो पाप का अर्थ है कि दोष लगाना, So it is as being blemish. और पाप का अर्थ है कि दोष लगाना। So the word ra, और ये जो शब्द है रा, it is evil or bad. और जिसका अर्थ है कि बुराई या बुरा। But when we go and we see, और जब हम इसे देखते हैं, we see that sin as being broken. और इसका अर्थ है कि जो पाप का अर्थ है कि टूटा हुआ। And the second that we see sin as being blemish. और दूसरा उसका अर्थ है कि दोष लगाना। If you bring anything for sacrifice purpose, और यदि आप कोई चीज जो बलिदान के लिए लाते हैं, when we read in the book of Leviticus, और जब हम लेवी व्यवस्था में पढ़ते हैं, and there we see that God have said about the things that the people of Israel they need to offer unto the Lord. और परमेश्वर ने वहाँ पे इस्राएल के लोगों को बताया कि कौन सी चीजें जो लोगों को परमेश्वर के बलिदान के रूप में चढ़ानी है। That the sacrifice that they bring as an offering to the Lord, और जो वो दशवान के रूप में बलिदान परमेश्वर के सामने लाते हैं, there should not be any blemish, और उसमें जो कोई भी दोष नहीं होना or चाहिए, there should not be any evil thing, और उसमें जो कोई भी बुराई नहीं होनी or चाहिए, there should not be any a bad thing. और उसमें कुछ भी जो बुरा नहीं होना चाहिए। So it is like there should not be any spot. और उसमें जो कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। The animal that they bring, it should not be lame. और जो जानवर वो लाते हैं वो जो लंगड़ा नहीं होना चाहिए। So that's what if you bring of those things, और यदि आप उन चीजों को लाते हैं, if you bring a thing which is blemish, और यदि आप उन चीजों को लाते हैं जिनमें दोष है, and if you bring as an offering which is having a lame, और या फिर आप उस जानवर को लाते हैं जो कि लंगड़ा है, so it means that और उसका अर्थ है you are sinning against God. कि आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। You may bring the thing, और आप जो चीजों को लाते हैं, but you did not bring a thing what God set before you. लेकिन आप उन चीजों को नहीं लाते जो परमेश्वर ने आपसे कहा है। So you brought a thing for sacrifice, और लेकिन आप चीजों को लाए जो बलिदान के लिए, but it is not as God said. लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस तरह परमेश्वर ने कहा। And God consider it as sin. और परमेश्वर उसे जो एक पाप के रूप में देखता है। You thought that I brought an offering. और आपने कहा कि मैंने जो दशवान को लाया, You brought an offering. और आप बलिदान के लिए लाए, और भेड़, और आप एक भेड़ को लाते हैं, or you brought an a thing for sacrifice, और आप उसे बलिदान के लिए जो चढ़ाते हैं, but लेकिन in your sight it can be right. और आपकी निगाह में ये सही हो सकता है। In your sight that you think that you have done everything in a right manner. आप अपनी समझ से सोचते हैं कि मैंने सब कुछ सही किया है, But लेकिन when God sees, जब परमेश्वर देखता है, it is as a broken. लेकिन वो वहाँ पे टूटा हुआ है। You have broke the commandment of God. आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, You have broke the word what God has spoken through Moses. और आपने उस शब्द को तोड़ा है जो परमेश्वर ने मूसा से कहा। So you have broken or you have brought a thing which God rejected. आपने उस आज्ञा को तोड़ा और आप उस चीज को लाए जो परमेश्वर ने नहीं कहा। So that is what we see ra, और इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं रा, which is used 600 times, more than 600 times in the Bible. और हम देखते हैं कि 600 बार से ज्यादा बार उसका उपयोग किया गया है पुराने नियम में। It is as evil और जिसका अर्थ है कि बुराई or bad, और बुरा, and even you can say as unhappy. और या फिर आप कह सकते हैं कि नाखुश, It is unhappy. और नाखुश, The thing that you do, और आपने जो चीजें की that God
is not happy of that. और परमेश्वर उससे खुश नहीं हुआ। That's what we see in the Bible. और इसीलिए हम बाइबल में देखते हैं, Particularly if you read in the book of Judges, और यदि आप पढ़े न्यायियों की किताब को in chapter 21, और उसका अध्याय 21 में, or even in chapter 17 or chapter 18, और या फिर उसका अध्याय 17 और 18 में, you see that the people of Israel और आप वहाँ पे देखते हैं कि इज़राइल के लोग did evil, और उन्होंने बुरा किया, thinking that it is right in their own sight. और उन्होंने सोचा कि उनकी जो निगाह में ये सही है, They did evil. और उन्होंने जो बुराई की, The Bible says और बाइबल कहती है, there was no king, और वहाँ पे कोई राजा नहीं था, and the people did evil और लोगों ने जो बुराई की in their own sight. और अपनी ही जो निगाह So में, it is like God was not happy of that. और परमेश्वर उससे खुश नहीं होता, God was not satisfied the thing what they have done. और परमेश्वर उससे संतुष्ट नहीं हुआ जो उन्होंने किया। Our main intention and our purpose of our living on this earth, और हमारा जो उद्देश्य इस पृथ्वी पे जो हम रहते हैं, as a believer और एक विश्वासी के or रूप में, as a child of God, और एक परमेश्वर के जो बच्चे के रूप में, is to live a life which pleases unto God. और हमें उस प्रकार से जीवन जीना है जो परमेश्वर को खुश करे। As parents expect their children और जैसे कि माता पिता अपने बच्चों से चाहते हैं that they need to make them happy, कि वो उन्हें खुश रखें, as the children expects that their parents should make them happy, और जैसे कि बच्चे अपने माता पिता से चाहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें खुश रखें, as wife expects from her husband to make her happy, और जैसे कि एक पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे खुश रखे, as husband expects that his wife should make him happy, और जैसे कि एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसे खुश रखे, a boss expects from his staff to make him happy. और जैसे कि मालिक चाहता है कि जो उसका दास है वो उसे खुश रखे। In every area that we see that man thinks that whatever that they do, it should bring peace and it should make them happy. और हर एक विषय में जो व्यक्ति कार्य करता है उसको चाहिए कि वो उस प्रकार से करे कि वो परमेश्वर को खुश कर So सके। in the same manner, और उसी प्रकार से it's a God that who expects us to make him happy through our life. और परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम उसको जो खुश रखें, And it is only by believing and living according to his word. और ये केवल विश्वास के द्वारा और जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है उस प्रकार से जीवन के द्वारा हम कर सकते It हैं। is believing his word. और उसके वचन के ऊपर विश्वास करना, It is believing what he said in his word and doing according to that. और विश्वास करना कि जो कुछ उसके वचन में लिखा है उसके ऊपर और उसी प्रकार से जो जीवन को जीना, And that makes God has happy. और ये परमेश्वर को खुश करता So है। what is sin? और पाप क्या है? A sin, the Hebrew word for another word for sin is ra, और जो इब्रानी भाषा में पाप के लिए जो शब्द है वो है रा, which is evil और जिसका अर्थ है कि बुराई or bad और बुरा or unhappy और नाखुश, or a evil thing to happen in life, और जो जीवन में बुरी चीजें होना, or even it is the sin as being broken into pieces. और जो पाप का अर्थ है कि तोड़ देना और टुकड़ों में तोड़ना, It is to broke the commandments of God. और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना, The word that God have said that you are violating of those words. और परमेश्वर ने जो वचन को आपसे कहा आप उसका विरोध करते हैं, And you break of those commandments. और आप उन आज्ञाओं को तोड़ते हैं, And it says that और ये कहता है it is sin. और ये पाप है। And then we see that और फिर हमने देखा, sin as being blemish. और जो पाप का अर्थ है कि दोषी होना, God always expects from us और परमेश्वर हमेशा हमसे चाहता है that we should live a life of blameless. और हम एक जो निर्दोष जीवन को जिएं, We have to live a blameless life. और हम एक जो निर्दोष जीवन को जिएं। It is like when you read in the Bible, और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, particularly in the book of Ephesians chapter 5, और इफसिया उसका अध्याय 5 में in verse 26 and 27, और उसका 26 और 27 वचन में, that God wants us that we should be blemish or we should be blameless
and without wrinkles and without spot. और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो बिना दोष के और पाप रहित हों, It is like, we should not have any wrinkles. और हमारे बीच में कोई भी जो बुराई या झुर्री नहीं होनी चाहिए, There should not be any spot in us. और कोई भी जो बुरा चिन्ह नहीं होना चाहिए, Because the spot can be seen very easily. क्योंकि जो एक धब्बा होता है उसे आसानी से देखा जा सकता है, A spot can be recognized or identified from very far. और जो एक धब्बा होता है उसे हम दूर से ही पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। And that only, और ये ही, when you see that, और जब आप उसे देखते हैं that makes you unhappy. और वो आपको ना खुश करता है, He says that everything is good, और आप कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, but only this. लेकिन केवल यही, And because of that, और उसी के कारण your entire atmosphere get changed. और आपका जो पूरा माहौल बदल जाता है, Because you will be unhappy. क्योंकि आप नाखुश होते हैं। So coming to God, और जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, when you sin against God, और जब आप उसके विरोध में पाप करते हैं, and God becomes unhappy. और परमेश्वर नाखुश होता In है। the Bible, 2 times that we read, और बाइबल में 2 जगह पे हम पढ़ते हैं, in Genesis chapter 6, और जो उत्पत्ति अध्याय 6 में, when the sin increased और जब पाप बढ़ गया and God was unhappy. और परमेश्वर नाखुश हुआ, And when you read in the 1 Samuel chapter 15, और जब आप पढ़ते हैं पहला सैमुएल उसका अध्याय 15 में, and God was unhappy when he made Saul to be the first king for the people of Israel. परमेश्वर नाखुश हुआ जब उसने साउल को इज़राइल का पहला राजा बनाया। And the Bible says, और बाइबल कहती है, it's God regretted. और परमेश्वर जो नाखुश हुआ, So you see in both chapters, और आप दोनों अध्यायों में देख सकते हैं, in Genesis 6 और उत्पत्ति अध्याय 6 में and 1 Samuel chapter 15, और जो पहला सैमुएल अध्याय 15 में, because they did evil. क्योंकि उन्होंने जो बुराई को किया They sinned against the Lord. और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। So, my dear viewers, और मेरे प्रिय दर्शकों, what is sin? और पाप क्या है? The sin is when you broke the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, and that becomes as evil, bad, and unhappy. You're making unhappy God. और तब आप जो बुराई करते हैं, बुरा करते हैं और परमेश्वर को नाखुश करते हैं। So there are again so few more words are there, और कुछ शब्द हैं, and we'll be learning in the next episode. और हम उसे अगले कार्यक्रम में सीखेंगे। So may the Lord continuously bless you all. और परमेश्वर लगातार आपको आशीष करता रहे। And if you have any suggestions and feedbacks, और यदि कोई भी सुझाव, कोई भी फीडबैक आपके पास है, and you can give to us, और आप हमें भेज सकते हैं, you can send SMS or even you can send through WhatsApp. और आप व्हाट्सएप के द्वारा और SMS कर सकते हैं। May the Lord continuously bless you all and be with you all. और परमेश्वर लगातार आपको आशीष करता रहे और आपके साथ हो। Shalom. शालोम। Tau Torah. तौ तौड़ा।